اور کاش کہ تم ان کو دیکھتے جب کہ وہ گھبرائے ہوئے پھریں گے اور کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں پائیں گے اور پاس کے پاس سے گرفتار کر لیے جائیں گے۔ تعجب اس شخص پر کہ جو مردوں کو دیکھتا ہے اور موت کو بھلا بیٹھا ہے، اور اس موت کی طرف سبقت کرو جس سے بھاگنا بھی چاہو تو وہ تمہیں پا لے گی، اور ٹھہر جاؤ گے تو گرفت میں لے لے گی، اور تم اسے بھول بھی جاؤ گے تو وہ تمہیں یاد رکھے گی، اور سائے کی طرح تمام عمر تمہارے ساتھ ساتھ ہے۔ ہم وہ ہمسائے ہیں جو ایک دوسرے کی ملاقات کو نہیں جاتے۔ ہم وہ ہمسائے ہیں جو ایک دوسرے سے اس طرح۔ ہم وہ بھولے بسرے لوگ ہیں جن کا کوئی انتظار نہیں کرتا۔ باوجود اس کے کہ ہم ایک جگہ جمع ہیں پھر بھی تنہا ہیں۔ باہم رفیق ہیں پھر بھی ایک دوسرے سے دور۔ زمین نے ہمیں بھیج لیا اور ہمارے بدن کا گوشت کھا لیا اور ہمارا خون چوس لیا۔ بس اب قبر کے گڑھے میں بے حس و حرکت نظروں سے اوجھل پڑے ہوئے ہیں۔ نہیں، مت لے جاؤ۔ تم لوگ میری بات کیوں نہیں سنتے؟ رک جاؤ، میں زندہ ہوں، میں زندہ ہوں۔ مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ ٹھہرو، تم سے بول رہا ہوں، ٹھہرو، میں زندہ ہوں۔ یہ تو مردوں کی جگہ ہے۔ مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ اتنی جلدی کیوں کر رہے ہو؟ ذرا آہستہ۔ اے خدا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ کتنی عجیب بات ہے۔ یہ تو تفضل حسین کی قبر ہے۔ یہ تو 20 سال پہلے فوت ہوئے تھے۔
بہتر ہوگا ایک نظر اس کی قبر پر ڈالوں. یعنی یہ ابھی تک یہی ہے؟ اور یہ میرا پڑوسی ہے. اس کا تو پیٹ پھٹ چکا ہے، آنتیں باہر نکلی پڑی ہیں، آنکھوں سے کیڑے ٹپک رہے ہیں. یعنی میرا جسم بھی چند روز بعد. لوگوں دیکھ رہے ہو کہ کس طرح ناز پروردہ جسم بوسیدہ ہو گئے. دیکھ رہے ہو کیڑے مکوڑوں نے ان کا گوشت کھا لیا. دیکھ رہے ہو ان کی آنکھیں بجائے سرمے کے خاک سے بھر گئی ہیں. دیکھ رہے ہو وہ زبانیں جو فتنہ و فساد کی باتیں کیا کرتی تھی کس طرح ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی ہیں. دیکھ رہے ہو کس طرح بے بس و لاچار پڑے ہیں، نہ دفاع کے لیے ہاتھ رہے اور نہ ہی آہوزاری کے لیے دل. دیکھ رہے ہو نہیں دیکھ سکتے، بالکل اسی طرح جیسے میں نہیں دیکھ پایا تھا. موت کی یاد آپ کے دلوں سے مٹ چکی ہے اور اس کی جگہ بے جا خواہشوں نے لے لی ہے، جیسے میں بھی اور کچھ دوسرے بھی. اے خدا کتنی جلدی میری دنیا ختم ہو گئی، جیسے ایک روزہ زندگی ہو. آرام سے مجھے زمین پر رکھے، میں التجا کرتا ہوں. ایک پہلو سے لٹاتے ہیں بائیں جانب، پھر ایک شخص جاتا اور مٹھی بھر خاک میت کے سر کے نیچے ڈال دیتا ہے اور مٹھی بھر خاک اس کے منہ پہ ڈال دیتا ہے. یعنی دیکھا کیا ہم نے دیکھا کہ ناک خاک پر رگڑی گئی. اس قدر غرور تھا اور اب آویلا. وحشت قبر مجھ پہ طاری ہوگی، میری زبان بند ہو جائے گی. جتنا بھی پکاروں یہاں مجھے منو مٹی تلے تنہا مت چھوڑو. مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے. نہیں آپ سب کہاں جا رہے ہیں؟ مجھے اکیلا مت چھوڑیں، مجھے تنہائی سے ڈر لگتا ہے. خدا کے لیے رک جائیں، مجھے اکیلا نہ چھوڑیں.
वहशतनाक मंजर है, कैसी अजनबी जगह है। इस मौके पर के जब मैं रोता हूँ अपनी कब्र की तंगी के लिए, मैं रोता हूँ अपनी कब्र की तंगी के बायस। देखा इंसान को एक पहलू से लिटाते हैं दाएं जाने, फिर एक शख्स जाकर कितना भयानक मंजर है। तेरा खुदा कौन है? मेरा माबूद खुदा यकता व तन्हा है। वो अल्लाह वही है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, छुपी और खुली का जानने वाला वही रहमान और रहीम है। तेरा पैगंबर कौन है? मेरे पैगंबर मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला हैं। और मेरे मौला अली इब्न अबी तालिब हैं। तुम कौन हो? घबराओ नहीं, मैं तुम्हारा दोस्त और रफीक हूँ। मेरे दोस्त? अगर तुम वाकई मेरे दोस्त हो तो इस मुसीबत में मेरी मदद करो। मुझे अफसोस है, जितने दिन दुनिया में तुम मेरे साथ थे उतने दिन यहाँ तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारी मदद करूंगा। तुम्हें खतरनाक सफर करना है, बहुत मोहतात रहो। मैं चलता हूँ लेकिन बहुत जल्द लौट आऊंगा। खुदा हाफिज। इसके जिस्म के तमाम आधा खींचो। खुदाया, मैं क्या करूं? सोता हुआ बन जाऊं? मुझे सो जाना चाहिए ताकि वो समझे मैं सो रहा हूं। इसको नींद से उठाओ। इसके साथ जो हो रहा है इसको लिखो। इसके जिस्म के तमाम आधा खींचो और इसके साथ जो हो रहा है इसको लिखो। इसका दिल निकालो। इसकी जबान निकालो। नाम आमाल इसकी गर्दन में डालो। इसके जिस्म के तमाम आधा खींचो। इसके जिस्म के तमाम आधा खींचो। इसकी कब्र को फिशार दो ताकि इसके आधा चूर चूर हो जाए।
دوست اٹھو کہ تمہارے سارے درد ختم ہو گئے، مجھے تمہارا زیادہ راہ کم دکھائی دے رہا ہے، لہٰذا تمہیں چند جمعے مزید یہاں رکنا پڑے گا، شاید تمہارے دوست تمہارے لیے کچھ بھیج دیں۔ میں چلتا ہوں تاکہ سلطان دین و دنیا سے تمہارے لیے اجازت نامہ طلب کروں۔ اگر تمہارے عزیز و اقارب کی طرف سے کچھ نہ آیا تو شب جمعہ اپنے گھر والوں کے پاس جاؤ تاکہ شاید تمہارے لیے خدا سے رحمت و مغفرت طلب کریں۔ مولا فرماتے جب انسان کی لاش قبر میں اتاری جائے گی، اس کے عزیز دوست رشتہ داران اولاد بیویاں سب اسے چھوڑ کے چلے جائیں گے، تب خدا کی آواز آئے گی، اے میرے بندے کہاں گئے تیرے دوست تیرے رشتہ دار جن کی محبت میں تو گھنٹوں بیٹھا رہتا تھا اور میری نماز کا وقت گزر جاتا تھا۔ ابھی تک تو کوئی خبر نہیں۔ میرا خیال ہے میرے گھر والے مجھے بھلا بیٹھے ہیں۔ مجھے پرندے کی صورت میں اپنے گھر جانا چاہیے، شاید میرے گھر والے اس شب جمعہ میرے لیے کچھ بھیجیں۔ یہاں ایک بھی مستحق انسان نہیں ہے، لگتا ہے انہیں صرف اپنے نام و نمود کی فکر ہے، میری نہیں۔ مہمان بھی صرف پیٹ پوجا کے لیے آئے ہیں، کیونکہ یاد امام حسین میں ایک آنسو کا قطرہ بھی ان کی آنکھوں سے نہیں ٹپکا۔ میرا بیٹا بھی محض اس لیے رو رہا ہے کہ اس کا سرپرست جو نہیں رہا۔ کتنا پردرد ہے یہ منظر، مجھے لوٹ جانا چاہیے، کسی کو بھی میری فکر نہیں۔ السلام علیکم دوست۔ وعلیکم السلام۔ یہ سیب کہاں سے آئے؟ ایک بندہ خدا یہاں سے گزر رہا تھا، جب تمہاری قبر پر پہنچا تو تمہارے لیے فاتحہ پڑھی، اور یہ سیب اسی سلے میں ہے جو دیکھ رہے ہو، خدا اس پر رحم کرے کہ بر وقت آیا ہے۔ اب سمجھا کہ دنیا میں ہمارے اعمال مرنے والوں کے لیے کس قدر مؤثر اور مشکل کشا ہوتے ہیں، لیکن ہم دنیا میں ان پر کوئی توجہ نہیں دیتے۔ میرے دوست، ایک خبر تمہارے لیے ہے، سنو گے تو خوشی سے پھولے نہیں سماؤ گے۔ مجھے خبر دی گئی ہے کہ حضرت عباس علیہ السلام اپنے والد علی ابن ابی طالب کی سفارش پر اور چند امام زادے و بزرگ ہستیاں کہ جن کے لیے تم نماز شب میں دعا کیا کرتے تھے یا ان کے مزار پر جا کر فاتح خوانی کرتے تھے، انہیں معلوم ہوا ہے کہ تمہیں سفر آخرت درپیش جس کا سامنا سب کرتے ہیں، تو ان حساس لمحات میں چاہتے ہیں کہ وہ تم سے ملنے آئیں۔ میرے خدا، میں اس قابل نہیں تھا، میں اور یہ سعادت۔ درد و غم سے بھری اپنی روداد ہے، وقت امداد ہے، دل کی فریاد ہے، بولا جائیے دل کی فریاد ہے۔
सामने मौजूद हैं हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम हैं और हबीब इब्न मज़ाहिर और दीगर हस्तियां भी हमरा हैं। उनकी आमद का मकसद सिर्फ तुम्हारी दिलदारी और तसल्ली और तशफ़ी है और मुहिब्बीन के लिए उनकी शफ़ाअत और दादरसी आखिर वक्त पर मौकूफ़ है। वो तशरीफ़ लाए हैं ताकि तुम उनकी शफ़ाअत से मायूस ना हो जाओ और सफ़र के लिए आमादा हो जाओ, क्योंकि आगे चलकर तुम्हें मज़ीद सख्त मराहिल से गुजरना है। वो मराहिल जो गुनाहगारों के लिए और भी सख्त रूह फरसा हैं। मंजिले कैद है, बंद है रास्ते, जख्म खुर्दा बदन पाँव में आबले, रहबरी के है मोहताज सब काफले। मेरे कशकोल में आपकी याद है, आपकी याद है, वक्त इमदाद है, दिल की फरियाद है, बोला जाइए दिल की फरियाद है। मेरे दोस्त, खुद को सफर के लिए आमादा करो, तुम्हें मजीद ज़्यादा राह की जरूरत है। मैं दोबारा अपने घर वालों के पास नहीं जाऊंगा। अगरचे वो मेरे नाम से बहुत कुछ करते हैं, लेकिन मैं उनकी खैर ख्वाहियों से मायूस हूँ। और अब मेरे जाने से सिवाय मेरे गम और गुस्से में इजाफे के कुछ हासिल न होगा। मैं तुमसे पहले चौथी मंजिल के लिए रवाना होता हूँ, तुम भी मेरे बाद चल पड़ना। चौथी मंजिल पर हम एक दूसरे से मिलेंगे। लेकिन दोस्त, मैं चाहता हूँ तुम्हारे साथ रहूं। दुनिया में ये 3 साल में तुम्हारे हमरा ना था, ये तुम्हारी अपनी कोताही है। अब खुद सजा के लिए तैयार रहो। ऐ खुदा, मेरी मदद फरमा। बहुत डर लग रहा है। काश कोई रफीक होता जो इस वक्त मेरे साथ रहता। खुदा का शुक्र, बिलाखिर कोई तो नजर आया। इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारे गले से पानी नीचे नहीं उतरने दूंगा। साम अलैकुम। तुम कहाँ जा रहे हो? जनाब, तुम जाओ। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम जिहालत है और मेरा काम फितना और फसाद फैलाना है। मैं तुमसे मुखातिब हूँ। तुमसे कह रहा हूँ। मुझे प्यास लगी है। यहाँ नजदीक में पानी होगा? पता नहीं। तो फिर तुम्हें क्या पता है? बस इतना पता है कि इब्तिदाई उम्र से ही साए की तरह तुम्हारे हमरा कभी तुमसे जुदा नहीं हुआ था, मगर ये कि खुदावंद तुम्हें तौफीक देता कि मुझसे जुदाई इख्तियार कर लेते। अजीब मुसीबत में फंस गया हूँ। खुदाया मुझ पर रहम फरमा।
किस कदर आहिस्ता चल रहे हो तुम? चलो। अगर रास्ते के दरमियान में चलोगे तो ये सब तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हालांकि नीचे का रास्ता हमवार है, लेकिन मैं चाहता हूं कि पहाड़ी पर से जाऊं। तुम्हारी सोच बिल्कुल ठीक है। यहाँ नीचे की हवा नासुगवार है और फिर बुलंदी से अतराफ के मनाजिर भी देख सकते हो। ठीक है, चलो चलें। बदबख्त नहीं जानता था कि इसका ये हाल इसलिए है कि जवानी में बहुत ऊंचा जा रहा था। नहीं जानता कि क्या मुसीबत इस पे छूटने वाली है। मलून, उस बुलंद पहाड़ी की क्या मंजरकशी की थी। काश मैं नीचे ही चलता रहता। जो कोई भी तकब्बुर करता है खुदा उसे बस्ती में धकेल देता है, और जो भी बरतरी चाहता है खुदा उसकी नाक को खाके जिल्लत पर रगड़वाता है। तुमने ये सब पढ़ा लेकिन उस पर अमल नहीं किया, लिहाजा तुम बलाओं के हकदार हो। बेहतर है कि नीचे ही से जाएं। दोस्त कहाँ हो? मेरा ये हाल देखो। अब जबकि तुम्हारा रिश्ता दुनिया से मुनक़ता हो चुका है, तुम्हारा ये हादी तुम्हारे लिए क्या कर सकता है? अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे बदन के सारे जख्म ठीक हो गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रास्ते में तुम पर क्या गुजरी? अल्हम्दुलिल्लाह, अगर कोई सख्ती थी भी तो आपको देखकर दूर हो गई, लेकिन कुछ लोग मुझसे पीछे रह गए हैं और उनकी जहालतों ने उन्हें रोके रखा है। हालांकि मेरी जहालत ने मुझे काफ़ी वर्गलाया था, लेकिन मैंने खुदा के फजल से उसकी बातों पर कान नहीं धरे और वो मुझसे पीछे रह गया। इंशाल्लाह अब वो मुझ तक नहीं पहुंच सकेगा। अफसोस कि वो हमारा पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं और अगली मंजिलों पर शायद हमसे जंग करें। हम बगैर असलहे के उनसे कैसे लड़ेंगे? अगर हमने दुनिया में असला तैयार किया होगा तो यकीनन अगली मंजिलों में हमारे सुपुर्द किए जाएंगे, लेकिन अगर असला तैयार किया हुआ न हो तो फिर मालूम नहीं हम पे क्या आफत गुजरेगी।
अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। चलो कुछ देर हम आराम कर लें, सुबह सवेरे हमें रवाना होना। ये मोहब्बत करने वालों का शहर है और वो अफराद जो अहले बैत की मोहब्बत में जन्नत के मुस्तहिक करार पाए हैं यहाँ ठहरते हैं। अली की मोहब्बत वो नेकी है कि जिसे कोई भी गुनाह नुकसान नहीं पहुंचा सकता। यकीनन जहालत दोबारा मेरे ताक़ुब में आएगा। मुझे होशियार रहना होगा, कहीं दोबारा उसके फरेब में ना आ जाऊं। ठहरो, कहाँ जा रहे हो? इस तरफ से जाना है। लौटा, आजा। इस वक्त मेरी आफियत इसकी मुखालफत में पोशीदा है, मैं सीधे रास्ते से जाऊंगा। ये मेरी बातों पर कान क्यों नहीं धरता? लौटा। खुदा की लानत हो तुझ पर, मेरी बात क्यों नहीं सुनता? आबादी ये चौथी मंजिल मालूम होती है। दोस्त ने मुझसे वादा किया था कि वो मुझे यहीं मिलेगा, मुझे जल्दी करना होगी। मेरा दोस्त कहाँ है? दोस्त? چون سرآمد دولت شب‌های وصل بگذرد دوران هجران نیز هم بگذرد دوران هجران نیز هم. मुझे उम्मीद है कि ज्यादा मुश्किल नहीं हुई होगी। खुदा का हर हाल में शुक्रगुजार हूँ। जिन खतरात से गुजरा वो जहालत की वजह से थे, जो दर हकीकत मेरी ही कोताही का नतीजा है। अब तुम्हें देख लिया तो मेरा तमाम गम और गुस्सा बरतरफ हो गया। मेरे दोस्त, खतरा अभी खत्म नहीं हुआ। अभी तो मजीद सख्त तरीन अजाब का सामना है। तैयार रहो, जो अक्सर इंसान को हलाकत में डाल देता है।
वो चीजें जिनके जरिए तुम अपना दिफा कर सको और इस मरहले से गुजर सको, वो सिर्फ असा और सिपर होगी जो तुम्हारे पास कम है। आज जबकि शब जुमा है, अपने अहले खाना के पास जाओ। मुझे उम्मीद है शायद वो तुम्हारे नाम से कोई सदका और खैरात निकाले और यूं तुम्हारी ज़ादे राह में मजीद इजाफा हो जाए। ए दोस्त, मैं उनसे मायूस हो चुका हूँ, और वजह है क्योंकि वो ज्यादातर अपने जाती मसाइल में घिरे रहते हैं। बिलखुसूस जिंदा लोग अपने मुर्दों को जल्द भुला देते हैं और उनकी याद मान पड़ जाती है। बहरहाल जरूरी है अभी और इसी वक्त जाओ। आम तौर पर मुर्दे के जाने से उन्हें उसकी याद आती है। उम्मीद है कि खुदाबंद अजीज तुम्हारे जाने को सबब करार दे कि वो तुम्हें याद करें। ठीक है, जाता हूँ। खुदा बख्शे तुम्हारे बाप को, इनकी जिंदगी में बहुत सुकून में थे, कभी भी बच्चे भूखे नहीं सोए। खुदा इन्हें बख्श दे। ये क्या, इनके हालात ऐसे क्यों हैं? मेरी जिंदगी में तो इनकी बड़ी इज्जत थी, तौकीर थी, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं, कोई पुरसाने हाल नहीं। बज़ाहिर इनकी माशी हालत भी अब तक लगती। मेरा बच्चा किस कदर कमजोर और खस्ता हाल हो चुका है। ऐ खुदा मुझ पर और इन पर रहम फरमा। ये घोड़े कहां से आए? इनमें से एक तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारे लिए भेजा है और ये रहमत हक है जो कि घोड़े की सूरत में पहुंचा है। और इन दुश्वार गुजार मंजिलों में पैदल चलने से महफूज रहने के लिए, जो कि बहुत दुश्वार है, बेहतरीन सवारी घोड़ा है। उनके हक में तुम्हारी दुआ भी कबूल हो गई है और आज के बाद से वो लोग आसूदा हाल हो जाएंगे। देखा तुमने तुम्हारा वहां जाना कैसा बाबरकत साबित हुआ। अब तुम तैयार हो जाओ, चलने का वक्त हो गया है। बहुत मोहतात रहना। मुमकिन है किसी भी लम्हे हम सरजमीन अताब में दाखिल हो जाएं। ये वही रास्ता है जिस पर तुम दुनिया में चला करते थे। घोड़े की लगाम को मजबूती से थाम लो और खुदा का नाम लेकर सीधे चलते रहो। कहीं ऐसा ना हो कि रास्ते से हट जाओ, फिर मैं तुम्हारी निजात के लिए कुछ न कर सकूंगा और तुम तन्हा रह जाओगे।
सी जगह है? ये गधे और गाय कहां से आए? कौन है? हम उस जमीन से इस जमीन शहवत पर पहुंचे हैं और ये सब शिकम परवर और तन परवर लोग हैं जो अपने माले हलाल से अपने शिकमों को पुर करते थे और सिवाय पेट पूजा के दूसरी फिक्र नहीं थी। इसी वजह से ये गधे गाय और भेड़ की शक्ल में दिखाई दे रहे हैं। अलबत्ता वो जो उल्टे हाथ की तरफ खंजीर और रीछ की शक्ल में हैं, वो हैं जो अपनी तन परवरी के सिलसिले में बहुत बेबाक थे और माले हलाल और हराम में अपने और दूसरों के माल में कोई तमीज नहीं रखते थे, इसीलिए सख्त अजाब की जद में हैं। जल्दी करो, यहां से निकलने की कोशिश करें। खुश नसीब हो तुम कि दुनिया में जो ग़िज़ा अपने घर में लाते थे उसमें बहुत मोहताज थे ताकि लुक़्मा हराम शामिल ना हो जाए, और खाना खाते वक्त भी पेट पूजा की फिक्र में नहीं रहा करते थे, लिहाजा बहुत आसानी से इस सरजमीन से गुजर गए। अगर इसके बरक्स होता तो एक तवील अरसा इस ज़मीन शहवत में गुजरना पड़ता। ये लोग ग़ीबत सुनने वाले हैं जिनके मुंह और कानों से अक्सर आग बरसती है। उनसे दूर हो जाओ। इस घाटी में कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो मोमिनीन का मजाक उड़ाया करते थे और हमेशा ऐब जोई और ताना गोई में मशगूल रहते और चश्मा अबरू की जुम्बिश से इशारेबाजी किया करते थे। ए काश मैं जानता ही नहीं मेरा हिसाब क्या है। ए काश मौत ने फैसला ही कर दिया होता। वाय वाय, मेरा माल मेरे किसी काम न आया। ये पीप हम गुनाहगारों की ग़िज़ा है, हमें इसके अलावा कोई खाना नहीं मिलता। चाहे जितनी भी ये पीप गंदगी व गलाजत खा लें, फिर भी भूखे हैं। वो मेरे खुदा, भूखा हूँ, हाय जल गया। इस औरत ने दुनिया में मसाइल शरई की तरफ कभी तवज्जो नहीं दी। ये अपने बालों को नामहरमों के सामने खुला रखती थी और नामहरमों के लिए अपने जिस्म की तज़ीन और आराइश किया करती थी। खुदा उसकी मग़फ़िरत ना करे कि जिसने लोगों को गुमराह किया और उन्हें खुदा के अजाब में मुब्तला किया। इन्हें जब जब ईज़ा पहुँचती है तो जलकर खाकस्तर हो जाते हैं और दोबारा नई खाल पैदा हो जाती है और नए अजाब में मुब्तला हो जाते हैं और कोई लम्हा करार नहीं पाते हैं। सूदखोरों का अंजाम ये होगा कि रोजाना हजारों बार मरने की आरज़ू करेंगे, लेकिन ना उन्हें मौत मिलेगी कि छुटकारा पाएं और ना ही राहत व आसाइश पाएंगे। ये वो लोग हैं जो मसाइल दीनी से बेइतनाई बरतते थे और वाजिबात के अंजाम दही उनके लिए कोई अहमियत नहीं रखती थी। अपनी नमाजों को ज़ाया करते थे और अहकामात इलाही से सरफ नजर करते थे। वाय हो उन पर जो खुदा के साथ खसारे का सौदा करते हैं। ऐ काश उनकी माओं ने उन्हें पैदा ही ना किया होता। वो जो सिर्फ अय्याशी के लिए शराब नोशी करते हैं। ऐ काश अपने दोस्तों को यहाँ आकर एक नजर देखते और मुशाहिदा करते कि खुदावंद मुताल ने किस तरह अपना वादा पूरा किया है।
इतना अंधेरा क्यों हो गया? ये कौन लोग हैं? ये कौन सी सरजमीन है? ये कौन से जानवर हैं? इन्हें देखते ही मारे बदबू के मेरा दिल मतलाया जा रहा है और दम घुटा जा रहा है। मेरे दोस्त, कहाँ हो तुम? मदद! हमारी मदद करो! ये जमीन शहबत है और ये सब जिनाकार हैं। अपने हिसार से बाहर मत निकलना वरना तुम गिरफ्तार हो जाओगे। खुदा रहम करे मेरे अहलो अयाल पर कि जिन्होंने मेरे लिए घोड़ा भेज दिया। ठीक सुना था कि जिस किसी ने भी शादी की उसने अपने निस्फ दीन को बचा लिया और बकाया निस्फ के लिए हमेशा खुदा से डरते रहना चाहिए। हमारी मदद करो। بندگی آوردم شرمن گر بگذرد. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا میں کثرت گناہ کی وجہ سے صراط مستقیم سے خارج ہو گئے ہیں اور اپنے ہی گناہوں اور کثافتوں کی دلدل میں ہاتھ پیر مار رہے ہیں اور کوئی داد رسی نہیں ہے، کیونکہ دنیا میں بارہا انہیں تنبیہ کی گئی تھی مگر انہوں نے سنا ہی نہیں۔ ان کے کان تو زیادتی گناہ کے سبب بہرے ہو گئے تھے اور کچھ نہیں سنتے تھے، حقیقت کو دیکھتے تھے لیکن اس پر یقین نہیں کرتے تھے۔ یہ ان کی اپنی لکھی ہوئی تقدیر ہے اور بدترین صورتحال میں بھی کسی بھی عذاب پر لب کشائی کی جرت نہیں کر سکتے، کیونکہ دنیا میں ان پر حجت تمام ہو چکی تھی اور وہ جانتے ہیں کہ یہ ان کی اپنی بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ प्यास के दम निकला जा रहा है दोस्त, क्या करूं? तुमने दुनिया में इस्तग़फ़ार का शरबत कम पहुंचाया था, इसी वजह से तुम मुश्किल से दो चार हुए। घोड़े से उतर जाओ, अब यहाँ घोड़े की जरूरत नहीं है, पैदल चलेंगे। وہ سامنے دیکھو کیا دکھائی دے رہا ہے؟ باغ کو آگ کیوں لگی ہوئی ہے؟ یہ کس کی ملکیت ہے؟ وہ باغات اور بھیڑیں ایک مومن کے ذکر اور تسبیح کرنے کا ثمر ہے، اور اب جب کہ وہ مومن جھوٹ، تہمت اور دیگر لغویات میں مشغول ہو گیا ہے تو اب یہ آگ کی صورت اختیار کر گیا ہے جس نے اس کی خوبیوں کے باغات کو جلا ڈالا ہے۔ اگر ان درختوں کا مالک ایمان محکم رکھتا ہوتا تو ان باغات اور بھیڑوں کو بڑی اہمیت دیتا اور یہ آگ نہ بھیجتا، اور جب وہ یہاں پہنچے گا تب سمجھ میں آئے گا کہ کتنا برا کام کیا ہے، اور یہ وہ وقت ہوگا جب کہ وہ حسرت و یاس سے آہیں بھرے گا، لیکن تب حسرت و یاس کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ تم خطروں سے نکل آئے ہو مومن، یہ وادی سلام کی حدود ہے کہ مومنی تمام منزلوں کو طے کرنے کے بعد اس میں داخل ہوتے ہیں، اور یہ تو خدا کا مومنین سے کیے گئے
وعدوں میں سے بہت چھوٹا سا صلہ ہے، اور تم نے سلطان دین و دنیا سے جو اجازت نامہ حاصل کیا تھا اس کے دکھانے کے بعد تم اس سرزمین وادی السلام میں داخل ہو جاؤ گے۔ یہ سرزمین سوائے سلامتی و پاکیزگی اور امن و امان کے کچھ نہیں۔ میں تمہیں مبارکباد دیتا ہوں کہ دنیا میں بنا دیکھے بہشت کے خریدار رہے۔ اجازت نامہ دکھائیے۔ ای مهربان یا رحیم یا ربی یا رحم یا کریم یا رب حق مصطفی یا رب به حرمت آل ابا بل ما گذر از جرم ما تو را به جان مرتضی غرق گناه ای خدا غرق گناه ای خدا بلوالگاه ای خدا بلگر به ها ای خدا درد مرا بلمدبا وای 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 خدا دیگر ندارم آبرو اما منو یک آرزو چیه آرزو قلب مرا ده شست و شد تا که شوم پاک از خطا هر واقعم باشه جان علی و آل او ما را ببر دنبال او قلب مرا کن مال او که از او نگردم من جدا یا ربنا اغفر لنا یا ربنا
ای مهربان